Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to talk about one of the very crucial act, which is Employee State Insurance Act 1948, which is a part of the UGC NET syllabus under Code 55, UPSC EPFO, other PSU exams like CIL and other exams where HR is in subject. So moving forward, let's start this particular act. Before starting this act, we will going to understand from where this particular acts came into the existence. So in 1944, the concept of social security emerged, and this concept has emerged in a particular format of a report which was you can say the managed by the chairperson of that particular committee, which made this particular report was bp Adkar, Professor BP Adkar. So he is the one, you can say the who name associate with the ESIC Act. If ever a question came into your exam which asking which committee has recommended this particular act, the answer would be Adkar Committee Act. This is the most asked question. If you talk about in the UGC NET exam, this question has been asked multiple times, and the report of that particular committee was called as Report on Health Insurance. So this is very first time the concepts of social security come into the existence in India. Afterwards, 1952. This is another milestone. The scheme was officially launched. So ये जो स्कीम बनाई गई थी फाइनली वो लॉन्च होती है, वो कब होती है? 14 फरवरी 1952 को, और वो कानपुर में होती है. बाय whom? By Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. For this reason, 24 February is known as ESIC Day. So this could be another important information under this act, and this could be a question in exam. Other facts about this particular act is the scheme was officially launched in Kanpur. I have already told you, so this is the repeated one, never mind. In 1958, C.L. Katalia was appointed as the first Director General of ESI. So, who was the first Director General? This could be a question too. Playing a key role in shaping its formative years. So, after the formative year, n number of amendments come in, n number of changes has been done. So, this was very crucial milestone we are talking about here. Moving forward, what are the objective? Why this act was so crucial? Because to provide medical benefit to employees and their dependent, all the medical, for an example, why social security came into the picture? Social security concept came into the picture because employee in the you can say the in the days when the employment has been disturbed, ऐसे टाइम पे जब एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू सिकनेस, ड्यू टू मर्टिनिटी, ड्यू टू डिसेबलमेंट और ड्यू टू डेथ और एनी रीज़न लाइक दैट, तो उसकी फैमिली सफ़र ना करे. सो दिस इज़ द रीज़न वाई होल सोशल सिक्योरिटी केम इन टू द एग्जिस्टेंस. तो उसी को फॉलो करने के लिए, उसी को अप्लाई करने के लिए एक लीगल फॉर्मेट में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट केम इन टू पिक्चर. तो ये मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को और उसके डिपेंडेंट्स को भी, to ensure cash benefit during sickness, maternity, disablement and death due to the employment injury. अगर डेथ हो जाती है या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो जाती है या सिकनेस है या मर्टिनिटी है या डिसेबल हो जाते हैं पार्शली या परमानेंट, एनीथिंग, अगर कुछ भी होता है उस पर्टिकुलर इस इंश्योरेंस में उसे कवर किया जाएगा. To offer a system of social security and protection for the worker in organized sector. So simply organized sector के लिए ये है और उनको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें. दैट्स द रीज़न वाई दिस एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस. तो दीज आर three important but crucial objective to fulfill by this act. Moving forward, स्कोप क्या है? ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? तो फैक्ट्रीज़ में अप्लाई होगी. फर्स्टली फैक्ट्रीज़ अप्लाई हो रही है. अगर आपको फैक्ट्रीज़ एक्ट का डेफिनेशन याद है तो फैक्ट्री एक्ट में डेफिनेशन बताया गया था कि एनी फैक्ट्री, एनी इस्टेब्लिशमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रही है यूजिंग एड ऑफ पावर, हैविंग 10
और मोर वर्कर उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं, और विदाउट एट ऑफ पावर कर रही हैं और एम्प्लॉयज़ हैं 20 और मोर, तब भी हम उसे फैक्ट्री बोलते हैं. तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन हैज़ मेंशन हियर फैक्ट्रीज यूजिंग पावर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर, और विदाउट एट ऑफ पावर जहाँ पे 20 और मोर है. तो फैक्ट्री ही जो फैक्ट्री डेफिनेशन में डिफाइन है वही मेंशन है. द एक्ट इनेबलिंग provision under which appropriate government empowered to extend provision of ESI to other classes of establishment. तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर appropriate government को पावर दी जाती है कि एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्ट को. कहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं? किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कमर्शियल में, और किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, या फिर किसी भी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे उसे ये रिक्वायरमेंट लगेगी. तो दिस इज द स्कोप ऑफ एक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन. What are the crucial definition which are we going to be covered in this particular act? तो appropriate government कौन होता है? appropriate government mostly आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट. अगर कोई भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बोलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी. अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो हम बोलते हैं वहाँ पे भी जो एक्शन लिए जाएंगे, जो आपका गवर्नमेंट इन पावर होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट होगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सिंपली रेलवे, मेजर पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड, ये सारे आपके किस में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं. और अदर देन दैट आपके क्या आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे. दिस इज़ वेरी इजी डिफ्रेंसिएशन, सो आई होप यू कुड रिमेंबर दैट. हुज आर डिपेंडेंट? अब डिपेंडेंट कौन है? तो देयर इज एन एम्प्लॉय ए और बी. लेट्स पुट अ नेम टू द एम्प्लॉय नेम इज ए. तो इफ एम्प्लॉय डाइड in this particular case, let's imagine an employee has died due to the employment injury or maybe due to some accident happen in the employment. तो डिपेंडेंट कौन होगा? सिंपली वेरी फर्स्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के स्पाउस मीन्स द विडो, द वाइफ. जो वाइफ है, जो विडो है, वो डिपेंडेंट होगी. उसका सन होगा, बट उसकी एज क्या होनी चाहिए? वो अंडर 25 ईयर होना चाहिए. वो लेजिटिमेट हो सकता है या अडॉप्टेड हो सकता है, नो वरीज. तो अब सन है तो डॉटर भी है. डॉटर में कोई एज लिमिट नहीं गिवन है, बट बोला जा रहा है वो अनमैरिड होनी चाहिए, और लेजिटिमेट हो या अडॉप्टेड, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. अब अगर उस पेरेंट की जो मदर है वो भी विडोड हैं, तो वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर वो डिपेंडेंट हो जाएंगी. या फिर ये तो हम समझ गए, अ लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, या फिर एक सन या डॉटर जो 25 के तो ऊपर है, क्योंकि सन के लिए 25 ईयर है और डॉटर के लिए कोई एज नहीं गिवन है, बट अनमैरिड गिवन है. बट इस पर्टिकुलर केस में सन हो या डॉटर हो और वो 25 के ऊपर हैं, वो होली डिपेंडेंट है, या आप कह सकते हो फुल्ली डिपेंडेंट है. पूरे तरीके से वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे. हो सकता है वो मेडिकली चैलेंज्ड हो सकता है वो फिज़िकली डिसेबल हो, फॉर एनी रीज़न अगर वो फुल्ली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट पे, अपने फादर पे, तो उस केस में ये भी डिपेंडेंट होंगे इवन दो एज आपका 25 से ज़्यादा हो चुका है. और कौन होगा डिपेंडेंट? होली और पार्टली डिपेंडेंट की भी बात करेंगे. अब कोई एक ऐसा पार्टी हो सकता है, कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर्स हो सकता है जो पार्टली शायद पार्शली आपका डिपेंडेंट हो. तो वो कौन कौन हो सकते हैं? अ पेरेंट अदर देन विडो मदर, तो सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट फादर हियर. तो फादर वुड बी हियर. अ माइनर इलेजिटिमेट सन और अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर. तो यहाँ पे हम इलेजिटिमेट सन और इलेजिटिमेट डॉटर को मे भी हो सकता है वो पार्टली या होली डिपेंडेंट हो, उनको भी इंक्लूड करेंगे डिपेंडेंट के डेफिनेशन में. डॉटर की बात कर रहे हैं, वो मैरिड है और माइनर है, वो कुछ भी हो सकता है. वो लेजिटिमेट बच्चा हो सकता है, वो अडॉप्टेड हो सकता है, वो इलेजिटिमेट हो सकता है. इस पर्टिकुलर केस में कुछ भी हो सकता है, बट वो आपकी मैरिड है या मैरिड है एंड माइनर है, या फिर वो विडोड है, विडोवर है और माइनर है. मतलब माइनर है अगर बच्ची, तो वो किसी भी रिलेशन से हो, लेजिटिमेट रिलेशन से हो, अडॉप्टेड हो, इलेजिटिमेट हो.
तो हम उसे पर्टिकुलर डिपेंडेंट में इंक्लूड करेंगे। अ माइनर ब्रदर है या अनमैरिड सिस्टर है और विडोड सिस्टर है इफ़ अ माइनर, उनको भी इंक्लूड करेंगे। और विडोड डॉटर इन लॉ है। अब हो सकता है दैट पर्टिकुलर मैन जिसको हम ABC नाम दे रहे हैं वो काफ़ी एजड है और उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो विडो है, उसके सन की डेथ हो चुकी है, तो उसका भी वो ख्याल रखेंगे। अगर उसी सन का माइनर चाइल्ड है तो उसका भी हम डिपेंडेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर, अगर डॉटर के भी बच्चे हैं और वो आपके माइनर हैं और कोई अदर पेरेंट नहीं अलाइव है तो वो भी डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। और ग्रैंड पेरेंट कौन से, पैटर्नल वाले। इफ़ नो पेरेंट इज़ इंश्योर्ड पर्सन इज़ अलाइव, अगर कोई और पेरेंट नहीं अलाइव है तो सिंपली उस पर्टिकुलर केस में पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट भी आपके डिपेंडेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आई बिलीव इट्स वेरी क्लियर। फैक्ट्री क्या होती है? एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग सराउंडिंग एरिया वेयर 10 and more worker work or have worked at any point in last 12 months where manufacturing occurs or usually occurs। तो यहाँ पे सिंपली फैक्ट्री की डेफिनेशन जो हमें पता है कि 10 वर्कर्स अगर एम्प्लॉयड हैं किसी भी दिन 12 मंथ्स के अंदर, तो सिंपली उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है विद यूजिंग द एड ऑफ पावर। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? माइंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंस एक्ट में कवर्ड है। और रेलवे रनिंग शेड को यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर देंगे, उसको फैक्ट्रीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब फैमिली में कौन कौन आता है? तो सिंपली स्पाउस मीन्स द वाइफ ऑफ द पर्सन, अगर मेल यहाँ पे है तो हस्बैंड ऑफ अ पर्सन। माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चिल्ड्रन हु डिपेंडेंट ऑन द इंश्योर्ड, तो माइनर जितने भी या अडॉप्टेड बच्चे हैं वो सारे उनकी फैमिली होंगे। चिल्ड्रन अंटिल एज ऑफ 21, if studying or unmarried daughter, if wholly dependent on the insured, I think this is self-explanatory। Children with disability already पता है, अगर disability के साथ children तो वो fully आपके ऊपर you can say dependent है, तो जब तक आपकी disability last करती है तब तक वो particular person पे family के अंदर included होगा और इस definition में भी होगा। Dependent parents and income below a certain limit, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उस पर्टिकुलर मैन के जो पेरेंट्स हैं और उनका जो लिमिट है, उसकी जो अर्निंग है वो सर्टेन लिमिट से अंदर है, सर्टेन लिमिट एक्ट में नहीं बताया गया, रूल्स में बताया गया है, तो अगर वो उससे अंदर है तब भी वो फैमिली में इंक्लूड होंगे। इफ़ इंश्योर्ड इज़ अनमैरिड, अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अनमैरिड है और विदाउट पेरेंट है तो एनी माइनर ब्रदर, उस केस में माइनर ब्रदर या सिस्टर फुल्ली जो डिपेंडेंट है वो भी पर्टिकुलर फैमिली के डेफिनेशन में ऐड हो जाएंगे। आई बिलीव इट्स वेरी क्लियर कि कौन फैमिली में आएगा और कौन डिपेंडेंट में आएगा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। डिपेंडेंट के बेसिस पे ही डिपेंडेंट को ही पैसे मिलते हैं और फैमिली को हम यहाँ पे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉमिनेशन में चाहिए होगा एक पर्सन ना, तो इस वजह से फैमिली की डेफिनेशन आती है। और यहाँ पे जो मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं वो फैमिली तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, तो इस वजह से फैमिली की डेफिनेशन बहुत क्रूशियल है। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या कौन होगा? इन द केस ऑफ अ फैक्ट्री, उस केस में कौन होगा? ओनर होगा या ऑक्यूपायर होगा, उसके मैनेजिंग एजेंट हो सकते हैं या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है डिसीज्ड ओनर या ऑक्यूपायर का, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसे पर्टिकुलर फैक्ट्री एक्ट में मैनेजर का नाम दिया गया है, मतलब वो मैनेज कर रहा है और फैक्ट्री एक्ट में उसे मैनेजर बोला जा रहा है क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में देयर इज़ अ डेफिनेशन फॉर द मैनेजर, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को इस फैक्ट्री में क्या दर्जा देंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता कौन है? जस्ट टेलिंग यू, देयर इज एन इमीडिएट एम्प्लॉयर, एक आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर होता है, एंड देन देयर इज एन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब डिफरेंस क्या है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज वर्किंग, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जिसका नाम ए है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसका नाम ए है, वो जो वर्क कर रहा है उसको हायर सिंपली कॉन्ट्रैक्टर ने किया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर इस केस में इमीडिएट एम्प्लॉयर होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा।
बट प्रिंसिपल एम्प्लॉय जिसके लिए वो काम कर रहा है, एक कंपनी है, कंपनी नेम इज XYZ, और वहाँ पे कुछ आपका काम हो रहा है, तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर केस में इमीडिएट एम्प्लॉयर होगा, और जो कंपनी का मालिक होगा, जो ओनर होगा, वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा. In government control establishment, the authority appointed by government, if not appointment the head of department. तो गवर्नमेंट में क्या केस होगा, गवर्नमेंट के केसेस में HOD को हम बोलते हैं हेड ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. अगर HOD नहीं है तो जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई उसे बोलेंगे. Either one will be called as the प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. अदर स्टैब्लिशमेंट में जो भी पर्सन सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे एज एन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. सीजनल फैक्ट्री क्या होती है, अ फैक्ट्री solely and specifically manufacturing like cotton grinding, pressing of cotton or jute, groundnuts, and production of coffee, indigo, लाख, रबर, शुगर इंक्लूडिंग गुड़ और टी. ये सारे जो सीजनल वाले काम हैं, अगर इसकी फैक्ट्री है तो वो सीजनल फैक्ट्री होगी. ये ऑल्सो कवर करता है वो सारे रिलेटेड प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. जैसे किसी भी फैक्ट्री में अगर वो जो फैक्ट्री है वो 7 महीने से ज़्यादा ऑपरेट नहीं होती है, तो मान लीजिए वो 6 महीने ऑपरेट होती है, वो 4 महीने होती है, वो 6.5 महीने होती है, तो सिंपली उसे हम इंक्लूड करेंगे. और वो ब्लेंडिंग में, पैकिंग में, रीपैकिंग, टी ऑफ कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रही है तो भी वो सीजनल फैक्ट्री है. एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो भी सीजनल फैक्ट्री में इंक्लूड होगा. वेजेस क्या होते हैं, the total cash payment to an employee based on the employment contract. जो भी employment contract के बेसिस में पैसे दिए जाएंगे उसको हम वेज बोलेंगे. उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी, इंक्लूड होगा ऑथराइज लीव, लॉकआउट्स, आपके नॉन लीगल स्ट्राइक्स, ले ऑफ्स, मटर्निटी बेनिफिट में अगर उनको कुछ पैसे मिले तो वेजेस में वो सारी चीज़ें आएंगी. और वो सारे एक्स्ट्रा रेमुनरेशन जो 2 महीने के अंदर लास्ट 2 मंथ में मिले हैं तो हम मान लेंगे कि वो हमारे वेजेस में इंक्लूडेड है. एक्सक्लूड क्या करेंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंपली एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, इसको कर देंगे. ट्रैवलिंग अलाउंसेस को कर देंगे, ट्रैवलिंग कंसेशन को कर देंगे, पेमेंट फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस और ग्रेजुटी अगर कोई पे की गई है तो उसे भी हम रिमूव करेंगे. सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन. That's all I have come up with for today's lecture, because I want to go slow but in detail, because this act is crucial. Plus, this is very brief act. It has so many sections and chapters which are very important to understand. This is the reason why we are going slow but in detail. That's all. Thank you for watching. Keep sharing, keep watching, and keep learning.